2 Timothy 2:1-13 says, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 1 से 13 वचन में लिखा है, therefore I endure everything for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ हाँ, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। हाँ, we have understood that how God has forgiven us, हम समझ गए हैं कि परमेश्वर ने कैसे हमें क्षमा किया है, and he died for us on the cross in spite of whatever bad we have done in our life. हम जितनी भी बुराई हमने क्यों ना की हो उसके बावजूद वो हमारे लिए क्रूस पर मर गया। And our enemies, we need to understand one thing, that we need to keep blessing them. The more we bless them, the power of enemy breaks into their life. और जो हमारे विरोध में आते हैं हमें उन्हें हमेशा आशीष देनी चाहिए, और जैसे जैसे हम उनको आशीष देते जाएंगे जो शैतान की सामर्थ उनके जीवन से खत्म होती जाएगी। And we should show more love and show love. और हमें और भी प्रेम उनको दिखाना है। I want you to read this with me. Last, चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ पढ़े। today I'm not वचन serving को। any meal, but we are definitely serving cup of tea, coffee. Therefore I endure everything. Okay, that we read. Saying is trustworthy for, if we have died with him, we also live with him. अगर हम उसके साथ मर गया है तो हम उसके साथ जी भी उठेंगे. If we have when we do water baptism, what we say, I died with Christ and I was buried with Christ and I rose again. So if you have really died with him, then you will also rise again. Okay? If we endure, we will also reign with him. If we go through all these problems what we are going through, endure the problem, we are going to reign with him. राज करेंगे। उसके साथ हम राज करेंगे. Okay, no matter what problem you may be going through right now, I do not know. Your problem is not my problem. My problem is not your problem. Your problem is a special problem. My problem is a special problem. But if we endure, we will reign with Christ. आप किस समस्या से जा रहे हो मैं नहीं जानता, आपकी समस्या अलग है, मेरी समस्या अलग है, लेकिन आप उसमें अगर बने रहते हो तो आप परमेश्वर के साथ It is राज easy कर for me पाओगे। to preach from this pulpit saying, you do this, you do that. No, you hear from God and do according what God tells you. If you endure, God is going to reign with you. You are going to reign with God. You are going to rule with God. मेरे लिए यहाँ पर खड़ा होके आसान है ये बोलना, ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन आपको मेरी नहीं, आपको परमेश्वर से सुनना है। और अगर आप उस परिस्थिति में बने रहते हो तो आप परमेश्वर के साथ राज करने पाओगे। If we deny him, अगर हम परमेश्वर से इनकार करते हैं he will also deny us. We know the scripture. वो भी हमसे हमें We know the मानने से scripture. इनकार Jesus said, करेगा। if you do not tell me, if you feel ashamed of me, I will ashamed of you in heaven in front of my Father. पर So वचन को तो आप जानते हो कि अगर वो कहता है कि तुम अगर मुझे मनुष्यों के सामने नहीं मानते हो तो मैं भी आपको पिता के सामने आपका इनकार कर दूंगा। but this is beautiful. Please listen, everybody. Please listen. If we are faithless, अगर हम अनविश्वासी है परमेश्वर के साथ, he remains faithful. He cannot deny because he is God. हम अविश्वासी भी हो तो भी वो हमारे साथ विश्वास योग्य रहता है क्योंकि वो परमेश्वर है। He will, no matter how unfaithful you are to God, कितना भी अविश्वासी आप परमेश्वर के प्रति क्यों ना हो जाओ, God will still fulfill his promises to save you. फिर भी परमेश्वर अपने वायदों को आपके जीवन में पूरा करता है, आपको This, बचाने the के लिए। last line, it took me at least half an hour to understand this line, the last line. करीब आधा घंटा लगा मुझे ये बात समझने के लिए। ये लास्ट लाइन जो है ना, मेरे को समझने के लिए बहुत टाइम लगा। मैंने बोला यार परमेश्वर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या प्रीच करूं लास्ट लाइन पे। गॉड इज सेइंग इवन इफ यू आर अनफेथफुल टू हिम, ही इज रेडी टू बी फेथफुल टू यू बिकॉज दैट इज हिज प्रॉमिस दैट ही विल नॉट लीव यू नॉर forsake you. परमेश्वर कहता है कि आप अविश्वासी भी हो जाओ तभी भी वो विश्वास योग्य रहेगा कि क्योंकि उसका वायदा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा ना कभी त्याग। ये लास्ट लाइन को हम पकड़ते रहेंगे और विल मेडिटेट ऑन दिस लास्ट लाइन। ये सारा समन जो मैंने दिया है, सारा प्रीचिंग दे दिया है, वो
साइड में रखो और लास्ट लाइन पे चलेंगे हम लोग। और हम सिर्फ इस एक वाक्य को, एक वचन को पकड़कर हम लोग चलेंगे और उस पर मनन करेंगे। कितना भी आपने गलती किया रहेगा, आप अनफेथफुल है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर आपको फॉरगिव करने को रेडी है। इफ यू आर सेइंग लॉर्ड प्लीज फॉरगिव मी, आई वाज अनफेथफुल टू यू, आई डिड नॉट डू दिस, आई डिड नॉट डू दैट, आई राइट नाउ फ्रॉम टुडे आई वांट टू गिव माय लाइफ टू यू, आई वांट टू फॉलो यू, आई वांट टू टेक अ यू टर्न राइट नाउ लॉर्ड। अगर आप अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है। आमेन।